सिजलिंग सीन देने वाली, सिजलिंग लुक से सबको अपना बनाने वाली, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से लोगों के बीच चर्चा में रहने वाली, अटपटे ड्रेसिंग सेंस से लेकर अटपटे बयान की वजह से पब्लिसिटी गेन करने वाली, लाइमलाइट से सालों तक दूर रहने वाली मल्लिका शेहरावत लौट आई है एक बार फिर से नेक्स्ट 9 न्यूज के आज स्पेशल प्रोग्राम में। हम आपको उनके बारे में जरूर बताना चाहेंगे। जी हाँ, फैंस के लिए ये है गुड न्यूज, क्योंकि मल्लिका शेहरावत फिर लौट आई हैं अपने अंदाज से लोगों का दिल जीतने के लिए। लेकिन क्यों, किस वजह से, ये आप जानेंगे हमारे शो के स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज मल्लिका शेहरावत को लेकर जो बड़ी खबर देने वाली हूं उसके बारे में जानकर आप सभी जरूर कांप उठेंगे, क्योंकि ये जो खबर है मल्लिका के एक वेब सीरीज से जुड़ी है। उस वेब सीरीज से जिसमें ये लोगों की धड़कनों को तेज करने के लिए तैयार है। अब तक आपने देखा होगा मल्लिका ने रोमांस से लोगों का दिल जीता था, अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से पब्लिसिटी गेन की थी, लेकिन हॉरर थ्रिलर सीरीज पर अब होगा मल्लिका का जादू। जी हाँ, एक वेब सीरीज लाया जा रहा है जिसके लिए मल्लिका नजर आई साथ में एक बॉलीवुड एक्टर के साथ। भाई क्या है पूरा मामला जो आप सभी के दिल को कपा सकता है, आइए देखिए स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड में चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के सितारों की होती है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको आपकी फेवरेट मल्लिका शेहरावत के बारे में जरूर जानकारी देना चाहेंगे। मल्लिका शेहरावत एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने बॉलीवुड में चर्चा एक खास अभिनेत्री के तौर पर बटोरी। कंट्रोवर्शियल अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने हाल ही में हॉरर कॉमेडी वेब सीरीज वो सबकी फटेगी के अनाउंसमेंट के मौके पर तुषार कपूर के साथ मिलन पर खुशखबरी दी है। जैसा कि आप जानते हैं ये शो एक हॉरर शो होगा जिसमें भूतनी बनेंगी मल्लिका शेहरावत। जी हाँ, घोस्ट होंगी वो, ये कहना उनका खुद है, ये आप सुनेंगे उनसे। तो तुषार कपूर से आप जानेंगे जो पहले भी फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए में साथ काम कर चुकी हैं। फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए, इस फिल्म में इन दोनों ने साथ साथ काम किया और इसके बाद ये 17 साल बाद मिल रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में उनसे। Very happy that I've been part of some very good comedy films written by very talented Farhad bhai. He has been part of the Golmaal series and I think I'm known for that more than anything else. So now I'm doing horror comedy. I think that's new after Golmaal. I think Golmaal bhi to horror comedy thi, hum use kyun bhul jate hain Golmaal again, but online I'm doing a horror comedy. So let's see what life has in store later. I hope to do more other genres also, not just comedy. But did you ever think that you'll be good at comedy when you started off? No, initially I came as a romantic hero actually, and I succeeded with my first film also as a romantic hero. Thereafter things just take their own course, you know, you can't really decide what life has in store for you. And it was in 3-4 years I did a film called Kya Cool Hai, which did really well, and thereafter I got Golmaal and then life changed for me. So I'm happy that comedy found me. I can't say I found comedy, because actors really start discovering themselves as they do more work. You know, you can't really plan your life saying that I'm going to become a comic hero or an action hero. So things worked out for me, thankfully, and I never imagined that I'd be known as. I was a very serious guy. I am a very serious guy. I'm not really an extrovert really. I'm kind of in the middle, you know, semi-extrovert, semi-introvert. So if you had met me while growing up, you'd never think that I would do comedy on screen. It's completely against, but maybe there was something inside me that really, you know, they say that you can't really hide the truth. So eventually I think the camera can really, you know, expose but your truth. no one in the world can do the way he does. That's true. I just copy him. On Golmaal, I just copy him. Farhad bhai, please. Yeah. And my second question is to Mallika. What has been keeping you away from Bollywood, and why this as a comeback project? I haven't really been away. I was just waiting for good parts to come my way. And when Farhad narrated this fabulous comic script, I said yes immediately. So I'm not at all away. I'm just waiting for good roles. Hi Tushar, Dharani from Telechakkar. So we all have seen you. Telechakkar has spilled the beans first. This press conference is happening because of Telechakkar. Yeah, so we already know how good are you at comedy. But then for an OTT platform like All Balaji, why not experiment and try some different genre?
I would eventually, but at the end of the day, you know, कहानी भी अच्छी लगनी चाहिए. You know, आप mad comedy भी करो, तो उसमें भी I think, you know, the people are very smart. You can't just make them, you can't entertain them just showing them anything. The script has to be good. So when I heard this script, it felt like, you know, this is going to just, you know, add to what I've done before. ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किया है पहले, क्योंकि बहुत नयापन है स्क्रिप्ट में और बहुत मतलब सरप्राइजेस हैं. इट्स हॉरर भी है और कॉमेडी भी है, तो I didn't want to lose something so good. Yeah, to be very honest. I think मैं बूढ़ा तो नहीं हो गया हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम है नहीं. बहुत टाइम है एक्सपेरिमेंट करने के लिए. Yeah. Okay. Now, why not start with something that people identify me with, you know, and you know, and with such good actors to work alongside, you know, we all good energy for the project. So that's also important, you know. Thank you. Also, my question is for Mallika. Since you said that good opportunity didn't come to your path, what kind of opportunity are you looking out for? I mean, in this series, I'm playing a ghost. I've never in my entire career played a ghost. I thought that was a great opportunity for me to play a ghost. Okay. And anything that, any kind of a dream role, what kind of projects that, you know, you want to probably do something that you want to experiment in Bollywood or also on OTT platform? What is that Mallika is waiting for? What kind of projects? A really meaty project where you can show your acting chops and where you can actually, there is more to you than glamour, there is more to you than sex appeal, where there is some acting involved. Okay. Character के लिए you would do the same for your web show also. So I don't feel any different. I think the same pressure, the same excitement, the same fun, and ये comedy show है, horror comedy show है, तो एक जो एक you know कमराडरी होनी चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मतलब जिनके अलग अलग किरदार है, जो साथ में हम लोग मतलब बहुत सारे शॉट्स देते हैं, सीन्स करते हैं. सो दैट इट फील्स लाइक आई एम डूइंग समथिंग वेरी वेरी फन अगेन, लाइक गोलमाल और क्या कूल है. आई फील लाइक आई एम डूइंग समथिंग दैट really is enjoyable. So I don't see any difference where big screen is concerned and web is concerned. We put in as much effort and we're trying to make it even bigger than that. कि आप मतलब जो फिल्मों में मतलब पैसे देखकर जो आप देखते हो उससे ज़्यादा आपको इसमें मिलेगा. शिफाली, आपकी बताइए प्रोडक्शन के बारे में, कितने का एक किरदार होगा आपका, और एक चौधरी का चांद के अंदर आपको काफी बहुत चौधरी का चांद थैंक यू भैया. चौधरी मेरे किरदार का नाम खुशी है और इसका नाम एक्चुअली होना चाहिए था खुद खुशी, क्योंकि शी इज़ फैसिनेटेड विद डेथ. उन्हें डेथ बहुत पसंद है. वो हर चीज़ को डेथ के साथ लिंक करते हैं. जैसे कि आप ऐसा करेंगे तो फिर इनके साथ ऐसा होगा, फिर ये ऐसा करेंगे, फिर ये मर जाएंगे, फिर वो मर जाएगा, फिर सारे मर जाएंगे. सो या सो शी इज़ फैसिनेटेड विद डेथ एंड या शी इज़ फनी एंड एवरीबडी इज़ फनी एंड खुशी है. एवरीबडी इज ब्लडी ब्लडी फनी ब्लडी फनी. साक्षी, आप क्या कहना चाहिए इस वेब सीरीज के बारे में? सो बेसिकली मेरी शादी हो रही है इसमें और मेरा हनीमून में ही सारे मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ आ जाते हैं एंड वो इवेंट्स, स्कैरी इवेंट्स पे चालू होते हैं. क्या होता है वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरे किरदार का नाम ज़ारा है और मेरी शादी में ही सब तमाशा होता है. मैम, आप बता दीजिए आपके किरदार के बारे में. ओके, सो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है शाहरुख एंड हम जब सब फ्रेंड्स यू नो यूनाइट करते हैं, हाउ हिलेरियसली थिंग्स गो रॉन्ग and yeah, I have a zombie look. That's all that I can say right now. Nothing much that I can out of bag. I'm very pretty, more than once. So yeah. मैम, आपसे जानना चाहूँगा, आपको लगता है विमेंस को लेके देश के प्रति लोगों की जो सोच है बदली है भारत में? थोड़ी थोड़ी बदल रही है डेफिनेटली. उसमें प्रेस का बहुत बड़ा हाथ है. जिस तरह से मीटू कैंपेन चला बॉलीवुड में, आप कैसे देखते हैं इस कैंपेन को? I think it's a very positive step forward and it was very necessary, and now the workplace has become a safer place for women to work. It's a very good step. शो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, TRP की लिस्ट में भी टॉप आ रहा है और आप काफ़ी सेलिब्रेशन भी कर रहे थे. हाउ यू सी दिस सक्सेस? बड़े सवाल पूछता तू. तो क्या कहना चाहिए, काफ़ी सक्सेस रहा और आपके अपोजिशन पार्टी जो है उनके शो टॉप नहीं चल रहे?
देखिए ऑपोजिशन नाम की तो खैर कोई चीज है नहीं, हमारी तो खुशी है कि भाई जितने लोग हंसाने वाले है नहीं वैसे, डोंट डू दिस प्लीज। दूध के दांत वाला है नहीं, दिखने में तो इतना शरीफ सा लगता है पर है नहीं, ये बड़ा शैतान निकला है। खैर शो तो चैनल से हो, शो तो खैर अच्छा चल रहा है और मोबाइल लगाया हुआ है। उम्मीद करेंगे कि शो इसी तरह अच्छा चलता रहे और बाकी कोई ऑपोजिशन है ये वो तो कुछ है नहीं। हमारे हिसाब से जितने ज़्यादा कॉमेडी शोज बन सकें और जितने ज़्यादा लोग हंसा सकें हमें तो उतनी खुशी होगी। बट हम अपने शो के बारे में बात कर सकते हैं। द कपिल शर्मा शो अच्छा चल रहा है, शुरुआत हुई है, 1 महीना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलता रहे। सीरीज की बात करो ना, दूसरी चीजों की बात मुझे बोला था अपनी वाट लगा दी थी कॉम्पिटिटर्स की। अब क्या चेंज हो गया? अच्छा हाँ, मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप सब लोगों को इस सीरीज से क्या उम्मीद है? ऑनेस्ट आंसर्स, चलो लगाओ अपने दिमाग और दो जवाब। कॉमेडी होना चाहिए, घुमा दे, कॉमिक होना चाहिए, हाँ, और वल्गैरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आजकल ऑनलाइन में ज़्यादा वल्गैरिटी होता है, वो नहीं होनी चाहिए। ओके। हॉरर का तो बोला नहीं आपने? हॉरर वही कॉमेडी हॉरर है ही है मैम, तो हो गई। So basically lot of comedy with less vulgarity. Well, तो देखा आपने, जाना आपने अपनी फेवरेट हीरोइन मल्लिका शेहरावत से क्या चल रहा है बॉलीवुड टाउन में, और मल्लिका की री एंट्री बॉलीवुड में कमबैक। बॉलीवुड से जुड़े स्टार्स के साथ वेब सीरीज करने की ये तैयारियां कर रही है इशारा कि आप सभी को एक बार फिर से अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कमजोर दिल वाले हैं आप तो आपको ये हॉरर शो काफी ज्यादा डरा सकता है। तो फिर हो जाइए तैयार एक बार फिर से डरने के लिए, एक बार फिर से एंटरटेन होने के लिए, क्योंकि हॉरर शो में जादू चलाएंगी मल्लिका शेहरावत। वाला वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो शो का करते हैं दी एंड, लौटेंगे फिर बॉलीवुड की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।